Are you investing in any thematic mutual fund, or has anyone advised you to invest in any thematic mutual fund? Or maybe you are already investing but you don't know that you are investing in a thematic mutual fund. Whatever the case may be, let's discuss these thematic mutual funds and what are the key challenges with these thematic mutual funds. Why these thematic mutual funds underperform any other mutual funds? What are the core concerns with these thematic mutual funds? We are going to discuss this in today's video. But before we discuss the concern or the challenges with thematic mutual fund, we are going to discuss what is a thematic mutual fund. So, whenever a fund is launched, mutual fund is launched, there is an investment objective stated by that fund house. And that investment objective defines which sector, which market cap this particular fund will invest investors' money in. And that's where the entire problem starts with. So, by limiting the investment objective to particular sector or particular theme, such as pharma, IT, or maybe manufacturing or something else, fund managers limit themselves, and after that, the problem starts. I'm just going to read the investment objective of one of the funds, that is ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund. And what they have stated in their investment objective is, quote, to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity-related securities of companies engaged in banking and financial services. Means they will invest investors' money only in banking and financial services, or let's say most of the money they will invest only in banking and financial services. इसका मतलब ये है कि ये सारा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा banks like HDFC, Kotak Mahindra, SBI और NBFC like Bajaj Finances, इस तरह के स्टॉक्स में ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे. Let's look at some of the thematic or sectoral mutual funds and where they have put most of their money. किस तरह के स्टॉक में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया. Now look at the first one, Nippon India Pharma Fund. So ये एक फार्मा फंड है, थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है और इसका टॉप एलोकेशन है सन फार्मा में. सेकेंड मोस्ट allocation is in the Divi's Laboratories, Lupin, Dr. Reddy, Cipla, Apollo Hospital, Vijaya Diagnostic, MedPlus, Ajanta Pharma, Client Pharma, etc. etc. मतलब इन्होंने अपना 80-90% इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो केवल और केवल फार्मा सेक्टर की कंपनी में किया हुआ. एक और देखते हैं फार्मा सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड. इसका भी टॉप इन्वेस्टमेंट सन फार्मा में. सेकेंड मोस्ट इज इन सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, ग्लैन, मैनकाइंड, जाइडस, फाइजर, बायोकॉन एक्सेट्रा. तो ये दो फार्मा फंड्स हमने जो देखे, इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर्स में है. आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा फार्मा में इन्वेस्ट किया, इससे प्रॉब्लम क्या है. We are going to discuss that, but before that, let's look at some of others thematic mutual funds. For example, ICICI Prudential Technology Fund. अब ये जो टेक्नोलॉजी फंड है, ये उन्होंने उठा के अपना सारा का सारा पैसा IT रिलेटेड और IT सर्विसेज रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. इनकी टॉप होल्डिंग है इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, भारती एयरटेल, LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा, HCL, विप्रो, जोमेटो, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्सिस एक्सेट्रा. आजकल और एटलीस्ट 2-3 महीने पहले तक मैन्युफैक्चरिंग थीम काफ़ी पॉपुलर था. सो हम एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड फंड को भी देखते हैं. यह HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड. इन्होंने सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, सिप्ला, लार्सन एंड टूब्रो, Aurobindo Pharma, Divi's Laboratories,
जैसे फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सन फार्मा फार्मा है तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग में क्यों है? अब इसका कारण ये है कि ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं और ये ड्रग्स को इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया अलग अलग ब्रांड्स के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर अपने ब्रांड्स के अंदर सेल करते हैं, बट मोर और लेस ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए शायद HDFC वालों ने इसको मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर रखा होगा। एक और फंड काफ़ी ज़्यादा, नॉट फंड एग्जैक्टली बट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है पिछले 2 सालों में, और उस सेक्टर का एक फंड मैंने यहाँ पे चूज किया है जस्ट टू एक्सप्लेन, दैट इज SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। अब आप देखेंगे इसकी टॉप होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पेट्रोनेट LNG, हिटाची, थर्मेक्स, CSC एक्सेट्रा। ये सारे के सारे या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी रिलेटेड है, पेट्रोल, एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या फिर ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी, इस तरह NTPC इस तरह की कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर एनर्जी सेक्टर की कंपनी है तो उसमें फार्मा की कोई, एनर्जी सेक्टर का कोई फंड है रदर, तो उसमें फार्मा का कोई स्टॉक नहीं है उस लिस्ट में, उसमें IT का कोई स्टॉक उस लिस्ट में नहीं है। अगर वो IT फोकस्ड, IT थीम पे बेस्ड फंड है तो उसमें पावर की कोई नहीं है, उसमें एनर्जी का कोई नहीं है, मतलब ये फंड्स लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है उसी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में स्टेटेड है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वाले बैंक्स में करेंगे, IT वाले IT में करेंगे, एनर्जी वाले पावर एंड एनर्जी में करेंगे। बट अगेन द की प्रॉब्लम इज नॉट एड्रेस्ड। व्हाट इज द की प्रॉब्लम? एंड ये होती है कि हर एक सेक्टर हर एक टाइम पे परफॉर्म नहीं करता। इनफैक्ट अगर आप मार्केट में थोड़े भी इंटरेस्ट रखते हो और मार्केट में थोड़े समय से हो तो आपने या तो सुना होगा या फिर खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि ये सेक्टर्स एक साइकिल में परफॉर्म करते हैं। काफ़ी लंबे वक्त तक PSU सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसने पिछले 3-4 साल में परफॉर्म किया, एंड इट्स लाइकली दैट इन नेक्स्ट 4-5 years दैट सेक्टर मे नॉट परफॉर्म। एनर्जी ने परफॉर्म किया, मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हो सकता है कि अगले 5-7 साल वो परफॉर्म ना करे। सिमिलरली केमिकल ने परफॉर्म किया था पोस्ट कोविड, बट पिछले 3-4 सालों में केमिकल ने परफॉर्म नहीं किया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक थीम बेस्ड है, एक सेक्टर बेस्ड है, तो वहाँ पे लिमिटेशन ये आती है कि वो फंड मैनेजर किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप उस तरह के फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपका फंड परफॉर्म करे, आपको रिटर्न मिले, लेकिन 1-2 साल बाद, 3 साल बाद आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये की चैलेंजेज है इस तरह के फंड में। और अगर अपने 5 साल 10 साल के लिए आपने SIP की कमिटमेंट कर दी उस तरह के फंड में, तो जिस तरह सेक्टर्स रोटेशंस होते हैं बाजार में, ये लाइकली है कि हो सकता है आपका बहुत सारा पैसा जब वो सेक्टर पीक आउट कर रहा होगा उस टाइम पे इन्वेस्ट हो और उसके बाद वो सेक्टर डाउन टर्न में चला जाए, मतलब वो सेक्टर परफॉर्म ना करे, देन यू आर लाइकली टू गेट डिसअपॉइंटेड और आपका रिटर्न मिनिमल हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन द नेचुरल क्वेश्चन कम्स, कांट फंड मैनेजर स्विच टू परफॉर्मिंग सेक्टर एंड स्टॉक्स? अगर उनको ये प्रॉब्लम पता है कि कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है या आने वाले टाइम में नहीं परफॉर्म करेगा, तो क्या वो स्विच नहीं कर सकते? जी नहीं, वो स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक म्यूचुअल फंड लॉन्च उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि ये फार्मा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा या फिर एनर्जी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो वो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में मेंशन करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन्वेस्टर जो भी इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करता है वो इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा को पढ़ के समझ के फिर इन्वेस्ट करता है।
तो प्लस रेगुलेटर्स इनको इस तरह की आज़ादी नहीं देता है कि एक थीम बेस्ड फंड में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करके ये किसी दूसरे परफॉर्मिंग सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स. So what is the solution? What is the alternate or maybe a better investment option for you? And answer is again in the investment objective of the fund. Before we move forward, let's read some of the investment objective of non-thematic fund, non-sectoral fund. So for example, मेरे सामने अभी है SBI Small and Mid Cap Fund का investment objective, where they say the scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity-related securities of small and mid-cap companies. इसमें इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि ये फार्मा में करेंगे, एनर्जी में करेंगे, बैंकिंग में करेंगे. ये कह रहे हैं स्मॉल एंड मिड साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो. तो यहां पे लिमिटेशन को वो खत्म कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड कर रहे हैं. जहां से वो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, अब वो नैरो बाउंड्री नहीं है. उनका पूल ऑफ स्टॉक्स जहां जो सेलेक्ट कर सकते हो वो काफी बढ़ जाता है एक नॉन थीमेटिक फंड के अंदर. तो ये एक अल्टरनेट और पॉसिबली बेटर ऑप्शन होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय नॉन थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें. अच्छा, आपको हमने ये दिखाया था कि थीमेटिक फंड में किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड था, वो चाहे वो पावर बेस्ड थीम पे बेस्ड फंड हो या फिर आईटी थीम पे बेस्ड और सेक्टर पे बेस्ड फंड हो. Let's read some of the investment of any non-thematic fund. For example, ICICI Prudential Mid Cap Fund. इन्होंने InfoEdge यानी Naukri.com, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिंदल पावर, मुथूट फाइनेंस, गोदरेज, प्रेस्टीज स्टेज, फिनिक्स मेल, APL अपोलो ट्यूब्स, ये इनकी टॉप होल्डिंग्स है. सो InfoEdge आईटी के अंदर कैटेगराइज होता है, जिंदल स्टेनलेस स्टील के अंदर है, पावर है, मुथूट फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस में आता है, गोदरेज प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में आता है. तो एंड अपोलो ट्यूब्स ऑफ कोर्स स्टील एंड उसके कुछ डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट बनाते हैं, उस कैटेगरी में आता है. सो आपने देखा मिक्स ऑफ सेक्टर्स है जहां पे इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है. किसी एक फंड में इनका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नहीं है. एक और देखते हैं, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, और इनका टॉप सेक्टर एलोकेशन अगर हम देखेंगे तो इन्होंने इंडस्ट्रियल में 12% रखा है, फिनेंशियल्स में 11%, फार्मा 7.8%, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट 7.2% एंड अदर्स. सो कई सेक्टरों में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है. इन्होंने अपने आप को लिमिट नहीं किया है कि मैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा. तो आपने देखा कि थीमेटिक फंड में किस तरह के स्टॉक्स थे, केवल एक ही थीम के या एक ही सेक्टर्स के. एंड नॉन थीमेटिक फंड में पूल ऑफ स्टॉक्स है, किस तरह बढ़ जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर से वो स्टॉक्स आते हैं. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द की डिफरेंस बिटवीन थीमेटिक एंड नॉन थीमेटिक फंड्स. As I said, not all sectors perform all the time. Stocks and sectors perform in the cycle. And fund managers of a thematic fund, they don't get freedom to invest in any other sectors or theme which they have not mentioned in their investment objective. So your thematic mutual fund investment are less likely to perform better than any non-thematic mutual fund. आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर इस तरह की लिमिटेशन है तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनीज, फंड हाउस क्यों थीमेटिक फंड इन्वेस्ट में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करती है या फिर क्यों थीमेटिक फंड लॉन्च करती है. इसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि वो जो भी फंड लॉन्च करते हैं रेगुलेटर्स के द्वारा सेट किए हुए फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं
और उनको एक नया प्रोडक्ट बना के लॉन्च करके मार्केटिंग करने की उनको पूरी आज़ादी है। वो कुछ गलत नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, एटलीस्ट उनका जो 1 पेजर रिलीज होता है उसको पढ़ेंगे, जिसमें रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। सो वो कुछ गलत नहीं करते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, एंड उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स, तर्क को भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फार्मा, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका चॉइस हो सकता है। और अगर आपका ऐसा चॉइस है, देन यू हैव फ्रीडम टू चूज एंड इन्वेस्ट इन सच फंड्स, द सेम वे म्यूचुअल फंड्स हैव फ्रीडम टू लॉन्च एंड प्रमोट देयर फंड्स। लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक समझने के बाद आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या ऑल्टरनेट बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। और एटलीस्ट आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर कर रहे हैं तभी भी आपके उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को डेफिनेटली पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस एनालिसिस मेक्स यू अ बेटर इन्वेस्टर, and if this makes sense, please go relook at your existing investment, or maybe in the future, if someone asks you to invest in a thematic fund, ask that person relevant questions, that I'm going to invest for 10 years, how likely this fund will perform in 10 years after going through the different cycles of the market, different cycle of that sector. So ask these relevant questions. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and share your feedback, comment, and questions in the comment box.